perpendicular. So when we talk about the principle of superposition of the waves, we are going to consider that what is going to happen when two or more waves meet at a point in space and combine together. So what happens when two waves arrive together at the same place? We can answer this from our everyday experience. What happens जब दो beams of light या दो torches जो हैं वो क्रॉस ओवर करती हैं? क्या होगा? मैं अपने फोन की टॉर्च जलाऊंगा इस डायरेक्शन में और अपनी फोन की टॉर्च लेंगे इस डायरेक्शन में, जो ये वाला एरिया बनेगा ये जरा सा ब्राइट होगा। क्यों? बिकॉज द बोथ ऑफ द लाइट्स हैव सुपरपोज्ड। सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो रिपल्स प्रोड्यूस हैं, ये इंटरफेरेंस हो रही है उनके दरमियान, ये इंटरफेरेंस हो रही है उनके दरमियान, दे आर सुपरपोजिंग विद ईच अदर। सो व्हेन टू वेव्स मीट दे कंबाइन विद द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द टू वेव्स एडिंग टुगेदर। एक आई टू डिस्प्लेसमेंट की, दूसरी भी आई टू डिस्प्लेसमेंट की, उनका रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट उनको एडिंग टुगेदर से निकलेगा। सो इफ यू लुक एट फिगर 13.3, अब यहाँ पे दो वेव्स हैं वो आपके पास सुपरपोज कर रही हैं, ये और ये, ठीक है। अब ये दो सुपरपोज करेंगे तो ये बिल्कुल, अब ये दोनों दो दो की थी, दोनों टू टू की थी। अब इन्होंने मिलके एक ही क्या कर दी, एक ही बड़ी लाल वेव बना दी है। गॉट इट? जी सर। So when two waves meet, their displacements add together. Figure 13.3 shows the displacement distance graph for two sinusoidal wave blue and green of different wavelengths, और resultant wave उनकी वो red वाली बनी है by combining both of those. Consider position A. Here the displacement of both the waves is zero. अब यहाँ पे ब्लू और ग्रीन वेव की डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, जो रेड वाली भी थी उसकी भी डिस्प्लेसमेंट उन्होंने यहाँ पे जीरो ही किए। तो हर पॉइंट पे हमने देखे हाउ व्हाट वाज द अलजेब्रिक सम of both the waves as well. So the red line is basically the resultant wave. And we can work our way along the distance axis in this way, calculating the resultant of the two waves by algebraically adding them up at the intervals. So notice that for these two waves, the resultant wave is a rather complex wave with dips and bumps along its length. And the idea that we can find the resultant of the two waves is by adding up the displacement, जिसको हम कहते हैं principle of superposition. This principle can be applied to more than two waves and also to all the types of wave. एक और statement superposition की कहती है that when two or more waves meet at a point, the resulting displacement is the algebraic sum of the displacement of the individual waves. So what is the meaning of diffraction? Can you tell me what is diffraction of the waves? सर डायफ्रैक्शन बेसिकली मींस के इफ अ वेव passes through a gap Hmm. तो इट इट स्प्रेड्स सर कैसे? Exactly. ठीक है, diffraction is the spreading of a wave as it passes through a gap or around an edge. For example, diffraction of sound भी होती है, light भी होती है, and they are the greatest when they pass through a gap which is equal to their wavelength. अगर उनकी wavelength जितना ही gap है तो बहुत ज़्यादा diffraction होगी, और अगर wavelength से भी कम है तो और ज़्यादा spreading होगी। This is useful in explaining why we can observe diffraction readily for some waves but not for others. For example, sound waves in the audible range have wavelengths from a few centimeters to a few meters. तो हमें कुछ environment की जगहों पे sound की diffraction महसूस होगी, एक doorway पे room spread होता है, echo होती है। But visible light have much shorter wavelengths. Shorter wavelengths वाली diffraction ज़्यादा noticeable नहीं होती है because obviously जो room का size होगा वो शायद बहुत बड़ा हो, और अंदर जो wavelength है light या sound की वो बहुत कम हो, तो that won't produce the observable diffraction as well. And you can also see the effects of diffraction for yourself by making a narrow slit with your two thumbs and looking through the slit at a distant light source, तो आपकी भी spread होगी। ठीक है, द स्प्रेडिंग ऑफ वेव कैन सीन एनी टाइम। और अगर आपको ड्रॉ करने को आती, दीज आर द सम ऑफ द डायग्राम्स दैट आर एक्चुअली गोइंग टू कम। आप देखते जा रहे हो क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो गैप छोटा हो रहा है आपके पास स्प्रेड भी ज्यादा होता जा रहा है। So radio waves can have wavelengths of the order of a kilometer, and these waves are easily diffracted by gaps in the hills and by the tall buildings around our own towns and cities. Microwaves used by mobile phone networks have wavelength of 10 centimeter, and these waves are not easily diffracted because their wavelengths are much smaller than the dimension of the gaps and mostly travel through space in straight line. गाड़ियों को भी रेडियो सिग्नल्स के लिए रेडियो वेव्स चाहिए होती हैं, बिकॉज इवन इफ यू ट्राई टू लिसन टू अ रेडियो ऐसे टेरेन में जहाँ वो पिक ही नहीं कर पा रहा सिग्नल्स, आपके पास कहीं डिफ्रैक्शन ही नहीं हो रही है, तो आपके पास वेवलेंथ्स कहाँ से आएंगी? गॉट इट? जी सर समझ गया। Diffraction is a wave effect that can be explained by the principle of superposition as well, and we have to think about
What happens when a plane ripple reaches a gap in a barrier? अब each point of a surface of the water in the gap is moving up and down constantly, and each of the moving points can be thought of as a source of new ripples spreading out into the space beyond the barrier. Now we have a lot of new ripples, and we can use the principle of superposition to find their resultant effect without trying to calculate the effect of an infinite number of ripples. We can say that in some directions the ripples add together while in other directions they cancel out. अब आप ये देखो, हमने दो स्लिट्स बना दी, एक ये स्लिट है और एक ये स्लिट है और एक ये भी स्लिट है। अब तीन गैप में से तीन तीन वेव्स देखो कैसे कैसे सुपरपोज कर रही हैं। दिस इज ऑल्सो डन बाय स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको हम कहते हैं स्लिट एक्सपेरिमेंट। So what is interference? Adding waves of different wavelengths and amplitude results in complex waves, and by complex we really mean not sinusoidal. We can also find some interesting facts if we consider what सर happens when साइनोसोडियल का मतलब? simple ये ऐसी वेव, ये इसको साइनोसॉइडल कहते हैं, ठीक है, साइनोसॉइडल। ठीक सर। So we can find some interesting facts if we consider what happens when two waves of the same type having the same wavelength, मतलब कि वो दोनों कोहेरेंट है, सेम वेव सेम टाइप सेम वेवलेंथ ओवरलैप करेंगी। अब ये भी आपके पास एक टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस यू हैव अ experiment where the phenomena results in the formation of points of cancellation and reinforcement as well. अब ये दो स्पीकर्स हैं, कैंसिलेशन कहाँ कहाँ होती रहेगी? जब दोनों का क्रस्ट के सामने ट्रफ आ जाएगा, ट्रफ के सामने क्रस्ट आ जाएगा। और रीइंफोर्समेंट कहाँ होती जाएगी? जब क्रस्ट के सामने क्रस्ट होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और ट्रफ के सामने ट्रफ ही होगा। सो हाँ। इवन इफ वी डिस्कस द रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट, रिपल टैंक के अंदर भी वही चीज होती है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। जैसे लाउड स्पीकर्स है, लाउड स्पीकर्स वर इन फेज, वो इन फेज क्यों थी दोनों वेव्स? क्योंकि they were both connected to the same signal generator, and at each point in front of the loudspeakers waves are arriving from the two loudspeakers, and at some points the two waves arrive in phase। इन फेज का मतलब क्या होगा कि दे आर गोइंग टू बी हैविंग द इक्वल एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। अगर एक वेव ए आ रही है, दूसरी भी ए आ रही है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर वो इन फेज है, वो पॉइंट, उस पॉइंट को आपने चेक करना है कि क्या वो पॉइंट इन फेज है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल। At टू है। other point ठीक। something different happens, the two wave completely arrive out of phase। मतलब कि 180 टू वन अनदर, एक वेव अगर ऐसे आ रही है तो दूसरी एग्जैक्ट आपके पास ऐसा है, एग्जैक्ट 180 डिग्री का फर्क हो जाता है। इसको हम कैंसलिंग आउट कहते हैं। दिस इज द पॉइंट वेयर द नॉइज कैंसल आउट। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है? जीरो एम्पलीट्यूड। एट दिस पॉइंट वी हाँ। वुड एक्सपेक्ट साइलेंस, एंड एट अदर पॉइंट्स अगेन द waves are neither perfect out of the step or not perfectly in step, and the resultant wave has an amplitude less than at the loudest point. When two waves arrive at a point in phase with one another, they will add up. We call it constructive interference. When they cancel out, the effect is known as destructive interference. Got it? इसमें आपके पास जो जी सर। एम्पलीट्यूड होता है वो जीरो हो जाता है, इसके अंदर आपके पास वो एड अप हो जाता है। ठीक है, ये दोनों सारी एग्जांपल्स देखें। अब ये दो वेव्स थी, ब्लू और येलो लाइन, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, तो रिजल्टिंग वेव ये बनी है। ठीक है, अब एक ये येलो वेव आ रही है और ये ब्लू वेव आ रही है, क्रस्ट के सामने ट्रफ आ रहा है, तो देखो रिजल्टिंग वेव क्या बनी है? बिल्कुल जीरो की लाइन पे है वो, जीरो। एम्पलीट्यूड ही नहीं है। और यहाँ पे क्या, दोनों वेव्स इन फेज है, एक का वन है अगर दूसरे का टू है, लेकिन है तो इन फेज ना, तो वन प्लस टू ऐड करके रिजल्टेंट क्या बना है? थ्री। थ्री का। क्लियर? सही। और यहाँ पे दोनों वेव जो थी, येलो भी और ब्लू भी साथ साथ है ना, दोनों का टू टू था एम्पलीट्यूड, तो वो मिलके तो फोर डबल। बन गया। ठीक है। How can we explain the interference pattern observed in a ripple bank? Look at figure 13.13 और ये ठीक है। Whether the waves combine constructively and destructively at a point depends on the path difference of the two coherent sources. Path difference क्या है? It is the extra distance traveled by one of the waves compared with the other. At point A, the waves from the red source have traveled three whole wavelengths, and the wave from the yellow source have traveled four whole wavelengths। मतलब कि जो वेव है येलो सोर्स से आ रही है, उसने भी चार होल वेवलेंथ्स कवर किए हैं, वन टू थ्री फोर ऐसे करके। और फिर रेड वाले ने भी इतनी की है। इनको हम बस पाथ डिफरेंस कहते हैं कि दोनों के पाथ में कितना फर्क है, एंड ऑल ऑफ दैट क्वेश्चन से भी समझ आएगा। अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, एट पॉइंट बी, ये वाला जो पॉइंट है,
इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? एट पॉइंट बी द वेव्स फ्रॉम द रेड सोर्स हैव ट्रैवल्ड 3 वेवलेंथ्स एंड द वेव्स फ्रॉम द येलो सोर्स हैव ट्रैवल्ड 2.5 वेवलेंथ्स। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखूं कि रेड सोर्स की कितनी वेव्स हो गई, 1 2 3, 3 हो गई हैं। और अगर येलो की देखूं तो 1 2 2.5। गॉट इट? समझ आ गया ये कैसे आया? जी सर, जी समझ आ गया। कोई और पॉइंट देख लेते हैं, उधर का पाथ डिफरेंस देखते हैं। ये वाला पॉइंट ले लें, ठीक है। 1 2 3 4, येलो आया 4 और रेड कितना है? 1 2 3, 3 आया, तो इनका पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 लैम्डा। गॉट इट? जी सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब तब होगा जब आपका पार्ट डिफरेंस होल नंबर्स में आएगा, जैसे कि 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा या 3 लैम्डा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो आपका पार्ट डिफरेंस हमेशा फ्रैक्शंस में आएगा, 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा। गॉट इट? एक ऑड से नंबर्स, एक ना फ्रैक्शन से या डेसिमल टाइप आपके पास नंबर्स बेसिकली शो होंगे उसके अंदर। कोहेरेंस का क्या मतलब होता है? कैन यू टेल मी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट? सर सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम कलर, सेम फेज, ठीक है। दो वेव्स, दो सोर्सेज में कह रहा हूँ कोहेरेंट है, तो वो इंटरफेयर करेंगी। कोहेरेंट का मतलब इन दोनों की एक ही जैसी वेवलेंथ, एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी और एक ही जगह सब कुछ है। गॉट इट? जी सर। जैसे हमने वो साउंड वेव को देखा था, साउंड वेव जो थे वो एक ही जनरेटर से कनेक्टेड थे। अगर वो कनेक्टेड होते, डिफरेंट सिग्नल जनरेटर्स थे, देन वो ऑब्वियसली स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती। और वो इन फेज विद अनदर होते, स्टार्ट में इन फेज होते लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते क्या हो जाते? आउट ऑफ फेज हो। ये देखो ना, एक ग्रीन वेव तेज भाग रही है थोड़ा सा आगे, शुरू में देखो इन फेज थे, बड़े प्यारे जा रहे थे, एंड पे क्या हो रहा है? आउट ऑफ फेज होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं प्रोड्यूस हो रहा। बट बाय कनेक्टिंग द टू लाउड स्पीकर्स विद द सेम सिग्नल जनरेटर, we can be sure that the sound waves they produce are constantly in phase with one another. We say they act as two coherent sources. Coherent का मतलब होता है sticking together. The sound waves from the loudspeakers have coherent, and coherent sources emit waves that have a constant phase difference. Note that the two waves can only have a constant phase difference if their frequency is the same and it remains constant. If they were not coherent sources, the interference pattern would be constantly changing, far या too fast या कम होता या detect नहीं हो पा रहा होता, or you won't be able to see any observable interference. Next we'll talk about the Young's double slit experiment. Double slit experiment क्या होता है? अब हमने दोबारा इंटरफेरेंस करवानी है। अब इंटरफेरेंस की शर्त होती है कि लाइट मोनोक्रोमेटिक हो, मतलब कि कोहेरेंट हो। अब हम दो लाइट सोर्स तो ले नहीं सकते, हम क्या करते हैं? हम लाइट सोर्स एक ही लेते हैं, लेकिन जो स्लिट्स हैं वो दो बना देते हैं। समझ आ गई? इससे क्या होगा? जी सर। लाइट सोर्स तो वही रहेगा, हमने स्लिट्स दो बना दिए दो वेव्स बनाने के लिए। बजाय ये कि मैं एक वेव एक से बनाऊं, एक वेव दूसरी सोर्स से बनाऊं, मैंने वेव जो है वो मतलब कि स्लिट्स दो कर दिए, ताकि एक ही सिंगल लाइट सोर्स से आपके पास दो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हो जाएंगे। एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, जिसके अंदर से ये जो पॉइंट्स होंगे ये होंगे मैक्सिमास, ये जो लाइट रीजन्स होंगे ब्राइटर वाले। और जो डार्क रीजन्स है उनको हम कहते हैं मिनिमास। वो मिनिमाज। मैक्सिमास कौन होते हैं? जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे आते हैं। मिनिमा कौन से होते हैं? जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे डिस्ट्रक्टिव। आते हैं। सबको छोड़ दें। फिर आपके पास एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, लेमडा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर डी। ठीक है। ए क्या स्टैंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्लिट्स, स्लिट सेपरेशन, की स्लिट्स आपस में कितना दूर है। एक्स क्या था? फ्रिंज सेपरेशन, जो यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा, फिर एक डार्क फ्रिंज, फिर एक ब्राइट फ्रिंज, फिर एक डार्क फ्रिंज, फिर एक ब्राइट फ्रिंज। ये जो स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस बनेंगे, इनमें क्या स्पेसिंग है उसको एक्स डिस्टेंस। कहते हैं। और स्लिट से लेके स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डी कहते हैं। गॉट इट? जी सर। ओके। Next, we'll talk about the last topic, diffraction gratings. A transmission diffraction grating is similar to the slide used in double slit experiments, but with many more slits than two.
It consists of a large number of equally spaced lines ruled on a glass or plastic slide. Each line is capable of diffracting the incident light and there are many as 10,000 लाइन. जैसे आप देखो एक सीडी के ऊपर 1 लाख किस्म की लाइनें नजर आती हैं. क्या है? ग्रेटिंग्स कहते हैं इनको. दीज आर नोन एज ग्रेटिंग्स. रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है व्हेन अ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब इंसिडेंट होगी, एक रिफ्लेक्टेड होगी, बाउंस बैक कर जाती है. Reflection diffraction grating is going to consist of lines made on a reflecting surface so that the light is both reflected and diffracted by the grating as well. For example, a CD or a DVD. और वहां से आपको ये चीजें नजर आएंगी. Now, observing diffraction with a transmission gradient, we have the bright fringes referred to as maxima. Central fringe होता है zero order maxima. ये तो बता दिया था कल सारा कुछ. ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं. Determining the wavelength with a diffraction grating, ये आपके पास second formula that is in your syllabus. We call it d sin theta is equal to n lambda. d आपके पास क्या है? वो distance, ठीक है. sin theta, theta आपके पास angle है. n is what, वो भी हम देखते हैं. Monochromatic light is incident normally on a diffraction grating having 300 lines per millimeter, and the angle between the zero and first order maxima is 10. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट लाइंस. हमने डी निकालना है, ठीक है, और हमें थीटा दिया हुआ है. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी नो दैट देयर आर 3000 लाइंस पर मिलीमीटर. ठीक है, ये 300 नहीं, 300 होना चाहिए था वैसे. देयर आर 300 लाइंस पर मिलीमीटर. तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे. ठीक है, डी क्या होता है कि 1 मिलीमीटर है. 300 लाइंस पर मिलीमीटर मतलब कि 1 मिलीमीटर के अंदर कितनी लाइंस है? 300. गॉट इट? जी सर. तो इसका डी का आंसर क्या आ जाएगा? 3.3 इंटू 10⁻³ ये आपको देगा, आपका क्या? डी देगा. गॉट इट? जी सर. ये है डिस्टेंस इन दी एडजेसेंट लाइन, जिसको दूसरे फॉर्मूले वाले डी से ना कंपेयर करना. अब जब आपके पास डी आ जाएगा, एन क्या है? एन होता है ऑर्डर नंबर. अभी यहाँ पे कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है? किस डिस्टेंस के पास? जीरो एंड फर्स्ट के दरमियान, मतलब कि ऑर्डर नंबर क्या है? 1. अगर वो कहता है 0 और 2 के दरमियान का जो एंगल है वो दिया हुआ, तो ऑर्डर नंबर क्या होता? 2. अभी ऑर्डर टू. नंबर है 1. तो अब आप लेमडा निकाल सकते हो. लेमडा निकालो डी साइन थीटा ओवर एन करके. समझ आ गई? जी सर. एंड यूल गेट योर आंसर ओवर हियर. वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट लाइंस. तो पहले आपने डी निकालना है. आपको दिया होगा कि लेट्स से 250 लाइंस पर मिलीमीटर है. आप 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 250 लाइंस कर दो तो आपका डी आ जाएगा. सही. The diffraction grating can be used to split white light up into component colors. This splitting of light is known as dispersion of light. A zero order maxima, ये वाला छोड़ दें बेशक. dispersion of line क्या होती है and all of that. बस आपका ये चैप्टर खत्म. ये पूरी समरी है इंपॉर्टेंट सी. अब इधर से देखते हैं. Rays of light from two coherent sources produces constructive interference. Which of the following cannot be the phase difference between these two? कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. 0 तो होगा, 360 भी होगा, 720 भी होगा. 270 और 180 जो होते हैं ना, वो आपके पास कौन से होते हैं? डिस्ट्रक्टिव के. लिख लो, ठीक है. सर लिखवाया? 720. हम्म. 720 किस तरह होगा सर? 720 360 के डबल है ना, देखो. एक हाँ, से सही 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 सही. जीरो है, समझ गया तो समझ गया. जीरो वहीं का वहीं है. 360 से भी एक पूरा ठीक साइकिल सर. कंप्लीट हो रहा है. और एक और भी कर लो तो 720 कंप्लीट हो जाएगा. 180 और 270 तो लाइक इट्स लाइक हाफ हाफ है. ठीक है. जी सर एक समझ लेमडा गया. बाय 2 और एक 3/2 लेमडा होगा. कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ द रिजल्टेंट वेव्स विद दैट ऑफ द कॉम्पोनेंट वेव. क्या समझ आता है? ये कॉम्पोनेंट वेव है और ये रिजल्टेंट वेव है. कैन यू कंपेयर देम? जी सर. सर, जो कंपोनेंट वेव है उस रिजल्टेंट वेव उसका डबल है. तो क्या चीज डबल है? जो रिजल्टेंट वेव है वो कंपोनेंट वेव से उसकी एम्पलीट्यूड डबल है. एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसका. जी सर. एम्पलीट्यूड बोलना है, ठीक है. ओके गुड. या डिस्प्लेसमेंट बोल दो. ओके. स्टेट हाउ द डायफ्रैक्टेड पैटर्न विल चेंज व्हेन wavelength is increased.
वेवलेंथ इंक्रीज। डायफ्रैक्शन और वेवलेंथ का क्या ताल्लुक है? सर वेवलेंथ कम थी तो ज्यादा ज्यादा डिफ्रैक्ट कर रहा था वो। वो तो गैप पे था, वो तो स्लिट्स पे था। डायरेक्ट ही है। ठीक है। सही। ओके। अब मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें।